Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Innal insana lafi allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bis-sabr. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Thank you, beta. Okay, we start today's session, and in this session, जो हमारा purpose है, the purpose of this session is to look at different security aspects which are linked with the files, folders, users, and group of users. So let me first have a short brief on this topic. So whenever is a person primarily come to use a computer, we generally call it a personal computer, or maybe in some cases it is a smartphone, for example. So in that case, usually a security permission is enforced at the login time. यानी जैसे आपने फ़ोन जो है वो उस पर लॉगिन का यानी कोई कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, कोई एप्लीकेशन देखनी है, so usually you use security features and security options for that. So these security options are based on the permissions which are assigned to user. इसी तरीके से अगर आप जैसे अभी आप कंप्यूटर लैब में तो नहीं गए हैं, लेकिन anyhow जब आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे, then you require a user ID and password. So usually it is enforced in the form of user ID, जिसको यूजर नेम भी कहते हैं. So user identification and a password associated with that user identification. A password या passcode. But in some cases, it is possible that security is implemented in the form of, for example, voice recognition, in the form of voice recognition, in the form of, for example, face recognition, in the form of fingerprint recognition, and in the form of, for example, a certain pattern, and in the form of a pattern, for example, a pattern is set, and similarly, in some cases, in the form of selection of objects or images. Okay, sometimes there more than one method is used for security, and sometimes more than two methods are used for security purposes. So two-fold and three-fold methods are common nowadays, and many of the websites and other applications use that information. Okay, so whenever password is allocated, तो आमतौर पे इस पासवर्ड को जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाया जाता है, या इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है उसकी कुछ फीचर्स होती हैं. उसमें आमतौर पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है उसमें नंबर ऑफ
characters used in the password, number of characters, and then combination of the alphabets. थोड़ा ज़रा माउस ज़रा हमारा इतना जो है वो राइटिंग हमारी कंप्यूटर पे इतनी अच्छी नहीं है. सो अल्फ़ाबेट, numbers, and Excuse me, sir. special characters. जी बेटा. सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है. आप दोबारा बेटा एग्जिट होके दोबारा लॉग इन करें. नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. जी बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, Yes, शो हो sir. रही है. ओके, थैंक यू. ये कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा हो जाता है, देन दे कैन वेट फॉर ए व्हाइल और दे कैन लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. तो उससे ये मामला जो है ये सॉल्व हो जाते हैं. तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ तमाम जो मैं और स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है. So in this session, we are primarily concerned with the permissions, and these permissions are associated with the files, folders, similarly users and groups. So primarily when we use a computing device, आमतौर पे कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है, then the security feature हम enable करते हैं, and these security features have usually user ID and passcode. Sometimes we are also using the voice recognition, similarly face recognition, and thumbprint recognition, and some pattern recognition, and some selection of objects, for example. And there are also many other type of primarily for example iris recognition, which is based on pattern inside the eye, and there are other as well. So these are different features which are used when we are using a computing device. And if we are the password, then usually the password or passcode are required by the system to be strong. Strong means the number of characters should have some, for example, 8 or more, or 6 plus, yani 6 se zyada. Then combination of alphabets in the form of alphanumeric keys, numeric, similarly the special characters जो कि आमतौर पे फॉर एग्जांपल परसेंटेज साइन है, और इसी तरीके से जो है वो और डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, चाहे टिल्ड वेव की तरह का एक साइन होता है. आमतौर पे कुछ लोग डॉलर साइन यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे डॉट्स है, सेमी कोलन है, and similarly slashes है. So these are some of the special characters. Even कुछ अपने पासवर्ड में स्पेस भी यूज करते हैं. So these kind of the combination makes a passcode or password strong. So this is the base summary of this session, and now we are going through the different slides. So I need to remove these annotations. Okay. So in order to support protection and security, computer accounts are created. So each user log in with
his or her own ID, and each account comes with certain access rights. For example, if faculty is logging, if teacher is logging, sometimes manager is logging, or a staff is logging, so they have different access rights. So the things which are linked with the user include the user accounts, user creation, that mean account creation, group and group creation, similarly passwords and the permissions. So group means a more than one account inside a group. So accounts are created and then the groups are created. जैसे एक कंपनी में बहुत सारे अगर यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो उसमें जो है कॉमन अकाउंट जो है वो स्टूडेंट अकाउंट्स है और टीचर अकाउंट्स है. तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स आर ग्रुप्ड इन ए डिफरेंट ग्रुप जो कि स्टूडेंट ग्रुप है, और टीचर अकाउंट्स आर ग्रुप्ड इन ए टीचर ग्रुप. सो दिस वे अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, और इसी तरीके से वी हैव यूज़र 3 एंड यूज़र 4. तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये यूज़र 1 और यूज़र 2 जो है ये स्टूडेंट अकाउंट्स है, और जो यूज़र 3 और यूज़र 4 जो है ये टीचर अकाउंट्स है. सो ग्रुप्स आर मेड, दैट मीन ग्रुप 1 is made, या ग्रुप एस कह लें, ये ग्रुप which include these two accounts inside, and similarly a group for teachers is created. So this way, instead of applying the permissions on individual user basis, the permissions are applied on the group basis. Repeat करना चाहता हूँ कि if we consider कि एक system है जो कि मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है, जैसे हम अपना ईमेल यूज़ करते हैं, सो देयर आर मैनी ईमेल यूजर्स. तो सो जो ईमेल सिस्टम है उसमें बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, बहुत सारे ईमेल आईडीज होंगे. सो इफ वी कंसिडर ए डेटाबेस इन विच जो है वो वी हैव द स्टूडेंट अकाउंट्स एंड वी हैव द टीचर अकाउंट्स. सो टू फैसिलिटेट the application of permissions and giving the access rights, it is easy to create the groups, one group for students and one group for teachers, and then add those users into those groups and assign permission to those primarily groups according to their जो rights होंगे सिस्टम के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल जो टीचर हैं वो डेमोस्ट्रेशन बना सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ राइट्स कैन एग्जिस्ट. ये लैब के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ. सो वी कैन फर्दर एक्सप्लेन, बट आई थिंक एट दिस इंट्रोडक्टरी लेवल इट विल बी सफिशिएंट. आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अपना जो जूम में रेज हैंड का ऑप्शन है, तो जूम क्लाइंट से आप अपना रेज हैंड का ऑप्शन इनेबल करें तो मुझे यहाँ आपका नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा. देन आई विल स्टॉप एंड आस्क यू कि आप अपना क्वेश्चन पूछिए. सो दिस इज़ द वे हाउ टू प्राइमरली इंटरप्ट मी एंड आस्क योर क्वेश्चन. लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ. ओके, निशुआ कुछ पूछना चाह रही है, बेटा आप पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि समटाइम्स जब हम पासवर्ड रख रहे होते हैं या इस अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर कभी कभी अगर हम स्लैश कॉमा या इस तरह के कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो वो हमारा इनवैलिड हो जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है? ये आपका सवाल ये है कि पासवर्ड में अगर हम ये चीज़ें डालते हैं, आमतौर पे ये चीज़ें पासवर्ड में इनवैलिड नहीं होती, ये यूज़र आईडी में इनवैलिड होती है. जैसे यूज़र आईडी आप इस तरह का नहीं रख सकते कि माय नेम इज़ फॉर एग्जांपल हैव 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम. तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि मैं रख सकूं फर्स्ट नेम कामा सेकंड नेम. हाँ, ये ऑप्शन जो है वो जीमेल में या दूसरी जगह पे मिल जाएगा कि फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम. तो यूज़र आईडी में ये रिस्ट्रिक्शन होती है. पासवर्ड में जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो भी अवेलेबल होती है, लेकिन आम तौर पे कम्प्लेक्स पासवर्ड लगाया जाता है. और अगर पासवर्ड जैसे बैंक अकाउंट्स हैं तो एटीएम कार्ड है, वहाँ तो आपको कम्प्लेक्स पासवर्ड या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है. वहाँ तो 4 डिजिट का एक
आपने कोड रखना है, उससे फिर वो ट्रांजैक्शन होती है। तो ये सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या करेक्टर्स अलाउ करता है। क्योंकि हम तमाम चीज़ें जो है वो कवर नहीं कर सकते, तो हम टिपिकल एग्जांपल्स की मदद से इन चीज़ों को सीखते हैं। तो निशवा, आपका सवाल ठीक है कि बाज़ दफ़ा जो है वो पासवर्ड में या यूज़र आईडी के जो स्पेस है उसमें स्पेशल करेक्टर्स जो हैं, जैसे अंडरस्कोर है या कामा है या सेमीकोलन है और स्लैश है, ये एक्सेप्ट नहीं होते। सिमिलरली अगर आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं सिस्टम में, तो भी फाइल जो नेम कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सो इट ब्रिंग्स अस ए न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड द कन्वेंशंस। कन्वेंशंस आर नथिंग बट द गाइडलाइंस। ओके, तो ये गाइडलाइंस जो है, अभी मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। सो निशवा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। ओके, कन्वेंशंस जो है दे आर प्राइमरली गाइडलाइंस विच आर डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल में जो यूज़र रखने की, यानी जो ईमेल रखने की गाइडलाइंस। इसी तरीके से पासवर्ड जो फील्ड है, जैसे ये यूज़र का फील्ड है, अगर आप इसमें यूज़र लिखते हैं और ये पासवर्ड आप लिखते हैं, तो पासवर्ड में इसके बारे में गाइडलाइंस है कि आप एक पासवर्ड रखेंगे तो वो क्या सिंपल रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, या वीक होगा या एक्सेप्टेबल होगा। यही चीज़ यूज़र के बारे में। जी निशवा, अब आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी आपने समझाया था, ग्रुपिंग का समझाया था कि उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सर आप अगर उस टॉपिक को प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दें, मुझे वो समझ नहीं आया सही से। देखिए, आपका सवाल ये नहीं था। आपका सवाल कुछ और था। अब आपने दूसरी दफ़ा क्वेश्चन चेंज किया है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कि ग्रुप का कंसेप्ट जो है उसको रिपीट कर दें। लेकिन पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन 1 है ये आपको समझ में आ गया है, आपका जो आपने पूछा था? यस सर, मुझे समझ आ गया। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था। मैंने पहले वो क्वेश्चन पूछना बेहतर समझा था। हाँ, तो अभी आपने, अच्छा, आपका अब दूसरा सवाल जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। उस क्वेश्चन में आप ये कह रहे हैं कि जो यूज़र अकाउंट है और जो उसका लिंक ग्रुप्स के साथ है उसको एक्सप्लेन कर दिया। हमने एक एग्जांपल की मदद से ये चीज़ जानी थी। तो अब हम कोई डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि सबसे ऊपर जो है वो सीईओ है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है ज़्यादा नहीं, दो ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, हमारे पास एक जो है वो फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो कि फाइनेंस के मैटर्स को देखता है। और इसी तरीके से हमारे पास एक जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या COO जिसको कहते हैं, COO, जो ऑपरेशंस के मामलों को देखता है। और इसी तरीके से जो ऑपरेशंस का मैनेजर, ऑपरेशंस के अंडर जो है, दे हैव 3 मैनेजर्स। लेट्स से दीज आर मैनेजर 1, मैनेजर 2 एंड मैनेजर 3 एंड मैनेजर 3। तो हम अपनी हायरार्की को यहीं तक रखते हैं और नीचे जो स्टाफ है उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो इस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, इसको मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस कीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल ऑपरेटर यानी ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, ऑपरेशंस का एक ऑफिसर है, और ऑपरेशंस के ऑफिसर के अंडर 3 मैनेजर काम करते हैं, मैनेजर 1, मैनेजर 2। सो ऑल ऑफ देम हैव अकाउंट्स। सो द सिस्टम, जो सिस्टम्स में लोग काम करते हैं, दे मेक 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप दे मेड फॉर ग्रुप फॉर a group for the
the persons which are reporting to the CEO. Okay, so इस ग्रुप का मैं नाम रख लेता हूँ CXO. ओके, सो ये ग्रुप है जिसके अंदर जो है ये, इसको मैं कह लेता हूँ कि ये CF है एंड CO है. ओके, तो इसके अंदर जो है ये दो ये जो हरा मौजूद है, इसको थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन के साथ मिला देता हूँ. इसमें ये दो लोग मौजूद हैं इस ग्रुप के अंदर. तो इस तरीके से इन दो यूजर अकाउंट्स को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया. इसके बाद मैंने एक मैनेजर्स का ग्रुप बनाया, मैनेजर्स मैनेजर्स, और आगे मैंने लिख दिया कि एक्स मैनेजर कोई भी हो सकता है. ओके, एंड दीज आर 3 मैनेजर्स. इन 3 मैनेजर्स को मैंने, इनके जो अकाउंट है इनको मैंने इस एक ग्रुप में, ये जो मेरे पास ये ग्रुप है ये, ठीक है, इसमें मैंने डाल दी. नो इट इज इजी फॉर मी कि हम जो भी एक्सेस राइट्स और परमिशन है वो यहाँ पे सेट करें और यहाँ पे सेट करें. वो ऑटोमेटिकली यूजर्स को प्राइमरली जो है वो मिल जाएंगे राइट्स. फॉर एग्जांपल कि ये यूजर्स जो हैं, ये एक फाइल, हमने एक फोल्डर सिस्टम, फाइल सिस्टम बनाया हुआ है, और उस फाइल सिस्टम के अंदर जो है वो हमने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है जो कि जो CX के नाम से है, और एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है जो कि MX के नाम से. तो हमने ये कर दिया कि जो MX वाले हैं वो इस फोल्डर को रीड राइट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और जो CX वाले हैं वो इस फोल्डर को सिर्फ रीड कर सकते हैं. ये थोड़ी सी मैंने उलट परमिशन दी है और आमतौर पे होती भी ऐसी है. क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है वो अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपडेट करते हैं कि जैसे ये मैनेजर है, ये मेंटेनेंस डिवीजन का मैनेजर है, यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है. इसी तरीके से ये मैनेजर जो है ये कम्युनिकेशन सेक्शन का मैनेजर है, और ये मैनेजर जो है ये एक और सेक्शन जो है उसका मैनेजर है. तो ये मैनेजर्स अपनी रिपोर्ट्स जो हैं ये ऊपर वाली मैनेजमेंट के लिए कॉपी करते रहते हैं. तो इनको रीड राइट एक्सेस चाहिए, रीड भी करेंगे राइट भी करेंगे. लेकिन जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी हुई है उनको सिर्फ रीडिंग के राइट चाहिए ताकि वो सिर्फ रीड कर सके, उनको चेंज के राइट नहीं चाहिए. तो इस तरीके से एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर यूजर अकाउंट्स और यूजर अकाउंट्स को ग्रुप में अरेंज करना, और उन अरेंजमेंट के बाद ग्रुप को परमिशन देना, ये पूरे का पूरा एक जो है सिनेरियो या जो सिस्टम है ये आमतौर पे सिस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है. जी नशवा, अब आप बताइए आपका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ गया. थैंक यू. ओके बेटा, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीज़ें और भी समझने का मौका मिला. क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन ज़रूर पूछने चाहिए. रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो एडिड एडवांटेज होते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वो अपना क्वेश्चन लिख ले, बाद में ग्रुप में पोस्ट कर ले, या अलग से अगर आप समझते हैं तो अपने ग्रुप में डिस्कस कर लें, अपने एक दूसरे से सीखें, किताब से मदद लें, इंटरनेट से मदद लें, और मेरे से भी पूछ सकते हैं. तो इंटरेक्टिव सेक्शन का मकसद यही है कि हम इन क्वेश्चंस को और इनको जाने. तो लर्निंग का पर्पस यही है. एक्सक्यूज मी सर. चाहेंगे बेटा, मुझे नहीं मालूम कौन सवाल पूछ रहा है. जो है निशवाई पूछ रही है. बेटा किसी और को भी मौका दीजिए, लेकिन अब आप सर एक चीज डिस्कस करनी है. सर जो आपने क्विज दी थी LMS के ऊपर अपलोड की थी, तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरा LMS का प्रॉब्लम है, मैं मतलब वो नहीं खुल रहा है. न्यू एडमिशन होने का से है, लेकिन क्या वो नहीं खुल रहा. तो फिर मैं तो क्विज अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई. तो अगर सर जब मेरा खुले और मैं तब अटेम्प्ट करूँ तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? जो है वो आपका सवाल पहले दोहरा लेते. आपका सवाल जो है वो एक्सेस से है, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस पर, और क्विजेस फिर आप उससे लिंक है. तो अभी जो है वो टाइमिंग हमने असाइन नहीं किया है किसी किस्म का क्विजेस के ऊपर और असाइनमेंट के ऊपर. तो अभी जो टाइमलाइन है वो टेंटेटिव है. आपको एक्सेस है, आप जब भी एक्सेस होगी आप अपलोड कर लीजिएगा.
ओके सर। आप अपने पास कंप्लीट करके रखें, जैसे ही एक्सेस आए आप फौरन अपलोड करें। ओके, अब हम इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग स्टूडेंट्स, अगर कोई और सवाल पूछना चाह रहा है। मुनीब जी, मुनीब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर LMS पे सर मुझे इनरोल करना है सर। बिल्कुल ठीक है, ऐसे मामला चूंकि ये सवाल लिंक्ड नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा, आप अपने CR को अपना नाम दे दीजिए, CMS ID दे दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो जो रिस्पेक्टिव टीचर को भेजना होगा ताकि वो, तो आप अपने जो ये मामला है अपने CR को भेज दीजिए और इंशाल्लाह ग्रुप में टाइप भी कर दीजिए। हम आगे चलेंगे। Then the definition of computer system comes again. Computer system can be defined as a collection of devices, software and also its users. क्योंकि अब जो users हैं अगर वो मौजूद नहीं है, then there is no need of computer systems. So if computer system is to be used by more than one user, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे लाइब्रेरी में सिस्टम पड़े हुए हैं। सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो शिफ्टिंग बेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक से ज़्यादा शिफ्ट्स होती हैं और जो राउंड द क्लॉक चलती हैं, सो एक ही कंप्यूटर मल्टीपल यूज़र इस्तेमाल करते हैं, देन दैट कंप्यूटर हैज़ टू बी ऑफर सम डिग्री ऑफ, so the protection ensure that the resources granted to one user do not interface with the other users or their resources. तो ये थोड़ा सा ईमेल एड्रेसेस से मुख्तलिफ है कि जो है वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर पर्सन का अपना ईमेल एड्रेस है, तो वो अपना ईमेल एड्रेस ही यूज़ करते होंगे, लेकिन चूंकि सिस्टम एक ही है या एक ही सिस्टम मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक का लॉगिन अलग होगा और हर एक का जो फाइल सिस्टम है जिसमें वो अपनी फाइलें सेव कर सके वो अलग होगा। So what are the resources? They include the memory, storing user processes, running applications, shared data and files. These are some of the examples. Sometimes अभी तो नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये होता था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही कंप्यूटर होता था और ज़्यादातर जो स्टेशंस होते थे, यानी जो यूज़र जहाँ से उस कंप्यूटर को एक्सेस करते थे वो डमी स्टेशन होते थे। तो some things are coming from that knowledge as well. So for example user processes, अगर सिस्टम अलग अलग है तो यूज़र प्रोसेस तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन sometimes the systems are common. जैसे आप Gmail यूज़ करते हैं या Yahoo मेल यूज़ करते हैं, तो सिस्टम तो पीछे एक ही है, लेकिन जब आप लॉगिन कर रहे हैं Gmail ID से और आपके और कोलीग्स, क्लासमेट्स या और जानने वाले जो हैं वो भी Gmail अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं, तो सर्वर तो एक ही है, बट योर प्रोसेसेस आर डिफरेंट। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने लॉगिन किया और आपकी जो ईमेल है वो नहीं आई दूसरे आपके किसी और Gmail अकाउंट की ईमेल आ गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दोज प्रोसेसेस आर डिफरेंट। सिमिलरली रनिंग एप्लीकेशंस, समटाइम्स जैसे फाइनेंस डिवीजन है या दूसरा कोई और डिवीजन, मेंटेनेंस डिवीजन है, तो ये दे आर यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस। एंड शेयर डेटा, समटाइम्स शेयर डेटा की कॉमन एग्जांपल जो है वो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, जिनमें जो मल्टीपल प्लेयर्स हैं वो एक ही गेम में खेल रहे होते हैं, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए शेयर डेटा। लेकिन इससे पहले हम एक डेटा शेयरिंग की एग्जांपल कर चुके हैं। एंड फाइल्स, नाउ ए यूजर is an agent who uses a computer. ये वो सीक्रेट एजेंट नहीं है या स्पाई एजेंट नहीं है, this is just a terminology, okay? So a user is an entity कहना चाहिए यहाँ पे, so who uses a computer, and that entity or agent may be a human and can be a software agent or software primarily entity, component. So a user account is a set of data, directories and privileges granted to a user set by the system administrator. तो ये system admins का काम,
वो प्राइमरली ये टास्क जो है वो करते हैं, और समटाइम्स सिस्टम एडमिन्स जो है वो इस टास्क को डेलीगेट भी कर देते हैं। यूजर अकाउंट की जो कॉमन डेफिनेशन है वो कहलाती है यूजर नेम प्लस यूजर पासवर्ड, और जो प्रोसेस यूज होता है इस लॉगिन का उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन इज ए लॉगिन बाय यूजर which uses the username and also the password, and then this user ID and password is compared with a database, and then the user is granted access to the system. तो इस तरीके से ये जो है ये बैकग्राउंड ऑपरेशन होता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स भी है। उसकी वजह ये है कि अगर जो डेटाबेस है उसमें जो यूज़र की इंफॉर्मेशन जो सेव होती है, अगर वो कोई हैक कर ले, ठीक है, ये डेटाबेस है और यूज़र जो है वो जब लॉगिन करता है तो वो अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है, और इस तरीके से वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो कंपेयर होता है, और अगर वो इक्वल है यानी उसके में मौजूद है तो उसको एक्सेस मिल जाती है, और अगर मौजूद नहीं है तो फिर एक्सेस नहीं मिलती है। तो आमतौर पे यूज़र यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड से एक कोड जनरेट करता है, और वो कोड फिर आगे डेटाबेस में देखा जाता है कि क्या वो कोड मौजूद है, और उस कोड की बेसिस पे यूज़र को एक्सेस मिलती है। तो इस प्रोसेस की डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो यकीनन गूगल से या इंटरनेट से सर्च करके इसको देख सकते हैं। ओके, सो देयर आर अदर मेथड्स एज वेल जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली कार्ड बेस और टोकन बेस एंड फिंगरप्रिंट बेस। देयर आर डिफरेंट मेथड्स which are used in addition to the user ID and password. So the password should be strong. ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है. So it is a combination of different characters, the alphanumeric and special characters, and there are some best practices that we must change the password, and we do not use the password which repeats itself. जैसे अभी हमने एक पासवर्ड बहुत फेवरेट है हमारा और हम थोड़े अरसे के बाद चेंज करके वही पासवर्ड दोबारा रख लें। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप में इसमें से कोई भी पासवर्ड आप नहीं करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दीज आर द नॉन पासवर्ड्स। तो ये डेटाबेस जो कर रहा होता है, जो फेक यूज़र आईडी और पासवर्ड से ट्राई कर रहा होता है, वो आमतौर पे इन्हीं पासवर्ड्स को देख रहा होता है, बिकॉज दीज आर कॉमन। और यूज़र समझते हैं कि ये हमने ये वाला पासवर्ड यूज़ कर लिया है कि जो है ये स्माइली कैट है और इसमें हमने चेंज करके तो वो ये हम सिक्योर हो गए हैं। लेकिन ये चूँकि सारी दुनिया जानती है कि ये एक एक्सीलेंट पासवर्ड है, तो तमाम जो हैकिंग के टूल्स हैं वो इसी पासवर्ड को यूज़ कर रहे होंगे। So these are some of the examples. Okay, some passwords can be okay, we can use it, but these are very weak passwords. Some are the better passwords. For example, Suzanne is using 53 and S capital, and then there is a dot which is being used. So these are the examples which are more good or excellent password type of examples. तो ये स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन डू नॉट यूज़ पासवर्ड एग्जांपल्स फ्रॉम इंटरनेट। और ये भी एग्जांपल जो है ना ये किताब से है, तो रिसोर्सेज से आपने कभी भी कोई एग्जांपल यूज़ नहीं करना। पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये कहते हैं कि मुझे मेरे पियानो, तो अगर आपको किसी अपने फॉर एग्जांपल फर्नीचर से या किसी किताब से, तो यू कैन यूज़ दैट बुक नेम, लेकिन पासवर्ड जो है बाज़ दफ़ा बहुत लंबा हो जाता है। Okay, normal user or end user account and system user or root or administrator account, there is a difference because user can only access files, for example, and different applications.
but system administrator can access to everything, including the configuration. Some social engineering related tasks, for example hacking, we should be careful about those, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं और कुछ जो है वो और भी एक्टिविटीज होती हैं. ईमेल फॉर एग्जांपल, दे आस्क यू डिफरेंट इंफॉर्मेशन. आपको बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड नहीं करनी इंटरनेट पे जिससे जो है वो जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज. सो फॉर एग्जांपल ए ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें सिस्टम में ये कैसे बनता है, तो दिस इज कॉल्ड, वी कैन एक्सेस इट थ्रू कंप्यूटर मैनेजमेंट. एंड इन कंप्यूटर मैनेजमेंट देयर इज a tree like structure, and on this tree structure we have a node, या यूँ समझें कि एक लीफ है जिसमें लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स लिखा हुआ है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए फोल्डर स्ट्रक्चर और ट्री स्ट्रक्चर, जो जिसमें एक रूट होता है. ट्री में आप जानते हैं कि वी हैव वन रूट एंड देन वी हैव स्टेम. स्टेम के बाद जो है वी हैव लीव्स, यानी जो उसके बाद शाखें ब्रांचेस हैं और उसके बाद लीव्स हैं. तो इस तरीके से ये आगे ट्री स्ट्रक्चर चलता है. तो ये ट्री स्ट्रक्चर का रूट कंप्यूटर मैनेजमेंट है. इसके बाद इसके आगे जो इसके स्टेम है उसमें सिस्टम टूल्स है, फिर इसकी ब्रांचेस हैं. वन ऑफ द ब्रांच इज लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, और उसके ऊपर लीफ में देखें यूजर्स का फोल्डर है और ग्रुप्स का फोल्डर है. अगर इस वक्त हम ग्रुप के फोल्डर में हैं और ग्रुप के फोल्डर में हमें डिफरेंट अकाउंट नजर आ रहे हैं. इस अकाउंट में आपको एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट भी नजर आएगा. इस दैट मीन इस ग्रुप के फोल्डर के अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप भी नजर आएगा, गेस्ट का ग्रुप भी नजर आएगा, पावर यूजर्स का ग्रुप भी नजर आएगा और सिंपल कॉमन यूजर्स का ग्रुप भी नजर आएगा. एंड देयर आर अदर ग्रुप्स ऐसे. और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप्स में चले जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप्स में अगर आप देखें तो वी कैन सी देयर इज ए अकाउंट name administrator and there is a account name WS admin. So these are the users. So this is how the users are arranged in the group, and similarly we can make new users as well, and we can add new users to the group as well. तो ये आप अपने कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं. हो सकता है कि आपके पास जो इंटरफेस है थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि हर वर्जन उसमें नई चीजें और नए जो जिद्दत है वो आती जा रही है. Then we can have permissions. Permissions are usually based on the control list. और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को जब हम एक्सेस करते हैं थ्रू परमिशंस टैब, परमिशंस टैब में हम किसी भी यूजर के ऊपर जाते हैं तो उस परमिशन के अंदर हमें उसकी परमिशंस नजर आ रही होती हैं. और जब हम फर्दर ऐड करते हैं तो अब हमारे पास जो है वो किसी भी यूजर को ऐड करके उसकी परमिशन सेट करने का ऑप्शन मिलता है. इस चीज को जो यहाँ पे हम सेट करते हैं इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें कि किसी फाइल को रीड करना, किसी फाइल को राइट करना, इस तरह के ऑप्शंस. और अगर एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना, दिस काइंड ऑफ राइट्स आर अवेलेबल ओवर हियर. तो चूँकि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है और हम सिस्टम एडमिन की टास्क नहीं कर रहे हैं, तो ये आमतौर पे सिस्टम एडमिन की टास्क. हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम आमतौर पे जो है वो जो हमारा गूगल ड्राइव है उस पर जाते हैं, गूगल ड्राइव पे फोल्डर को शेयर करते हैं और उस पर हम एक्सेस परमिशन देते हैं. ये आमतौर पे हम करते हैं. So there is also an option in which we can switch, and when we switch user